our chief guest, our, Hello. hello, our chief guest of the valedictory session, Dr. UC Vishesh, Professor of Education, University of Lucknow, has joined with us. I request sir to please share your ideas with the audience. G. Shall I begin, sir? Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. Okay. Sure, sir. First of all, I'd like to congratulate Sedana Institute of Education for organizing this international webinar. In fact, over a period of time, and particularly because of the impact of COVID-19, the seminar has got changed to webinar. First of all, I'd like to place on record my long association with Professor Dr. Jeevan Jyoti Sedana ji, with whom I have been connected, I think, for more than a decade. Sedana Institute I have seen growing from scratch. I have visited last only 6 months back, or hardly 6 months back, I had visited Sedana Institute, and I was overwhelmed to see the progress. In fact, the personality of Dr. Jeevan Jyoti Sedana is so manifold that she has the ability to coordinate all possible strings which are affecting the process in positive way. So she is a wonderful coordinator. I should definitely congratulate her, number one. Secondly, I would say that the place where you are holding this seminar, in fact, has got the very, say, secret or the formula for the topic which you have taken. I'll repeat the topic for the time being. Impact of COVID-19 on the mental health of college youth. I'll come and talk about the topic in detail, but prior to that, I should tell, or let us say, remind you people about the very potential that your place have got. As I said for the first time, Professor Jeevan Jyoti Sedana, besides that, the history and development of the land in which you are holding this webinar is simply superb. There is a book by Sanjeev Sanyal, who says that his book is The Land of Seven Rivers. In the book, he says that Punjab is a land, one of the most ancient land of the world. Punjab is a land where Vedas were written on the bank of River Ravi and other, this Punjab, that's why named 5 rivers, so Punjab. So this land of Punjab is a land of Vedas, where in fact it has gone through a vast millions and millions of experiences. So in a lighter vein, it would see that COVID is nothing before all that. Add to this the glory of the city, one in a negative sense, of course, one in a positive sense. There is a golden temple. The 4 doors on 4 sides of the temple. They said, oh, everything, everyone from all 4 corners, all 4 sides is welcome. So that's again in the tradition of Indian philosophy, Indian culture. Then we had everybody visits Amritsar because of Jallianwala Bagh. Amritsar witnessed a sacrifice of hundreds and thousands of people in Amritsar. So the very secret or the potential for fighting COVID by the youth in particular, the college youth, is within you. There is a saying,
मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो ए बंदे, मैं तो तेरे पास में ही हूं। तो मुझे लगता है शायद सारे विश्व का, सारे भारत का, सारे पंजाब का कोविड-19 से लड़ने का जो सीक्रेट है वो पंजाब में ही है, अमृतसर में ही है और आप लोगों में ही है। Everybody has got amongst you has got the potential to fight, to keep the best of mental health. Anyway, let me come to the webinar. Very honestly, I'm not very much friendly with the webinar kind of a thing. With all honesty, मैं ये भी कहूँ कि आज दरअसल वेबिनार करने का थोड़ा फैशन भी हो गया है और आज लोग हर कोई चाहता है कि हम इससे उससे उससे कनेक्ट हो जाएं। कि तो उसके लिए जो बड़ी तैयारी साथ चाहिए, पहले से बहुत पढ़ाई चाहिए, पहले से रीडिंग, थिंकिंग, एनालिसिस, समिंग अप, जो एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग स्किल्स हैं या एटीट्यूड है, जो तैयारी है, वो अक्सर नहीं हो पाती। खैर, मैं मान के जान चल रहा हूं और मेरी मैडम से बात भी हुई थी कि आपकी महीनों से तैयारी चल रही है। अब मैं एक और यहाँ बात कहूंगा कि आपके बातचीत के बारे इसमें कि आई एम द लास्ट काइंड ऑफ ए स्पीकर और दिक्कत मेरी ये है कि मैं यहाँ गलती से अमेरिका में हूँ, अपने बेटे के पास टेक्सास ऑस्टिन में, और यहाँ इस समय मेरे यहाँ 7:15 बजे हैं सुबह के। तो आपकी जब सेमिनार शुरू हुई थी 10 बजे, तब मेरे यहाँ 11:30 रात के बजे थे। इसलिए मैं अपने आप को वो अभागा कहूँगा। आई एम अनफॉर्चुनेट दैट आई कुड नॉट लिसन टू द प्रोसीडिंग्स व्हिच हैव, और जो मुझे लिस्ट दी गई है, मैं लिस्ट में ही नाम पढ़ रहा था। आपका मेरा 33वां नंबर है। आई एम द 33rd पर्सन टू स्पीक ऑन द डे, या इससे जो एक्टिविटी से डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनमें। तो इस वजह से आपके सुबह से अब तक जो बहुत बातचीत हुई है, जो सारी लोगों ने आए हैं, अपने मत रखे हैं, साइकोलॉजी के लोग हैं, जिन्होंने एंगेजिंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन की बात हुई है, और बड़े बड़े कहना चाहिए विद्वान मनीषी में नाम लंबाई में जल्दी लंबी लिस्ट है पूरी। प्रोफेसर जी.डी. शर्मा जी, प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी जी, प्रोफेसर पी.डी. गर्ग साहब साइकेट्री पर, प्रोफेसर अमित कौट्स हमारे अच्छे पुराने मित्र हैं, प्रोफेसर आई.एस. सूरी जी, प्रोफेसर आर.पी. शुक्ला जी, प्रोफेसर ज्योत्सना पटनायक, प्रोफेसर मैथ्यू शर्डलॉफ। मैथ्यू जी, ज्योत्सना जी भी मेरी 10, 12, 15 साल पुराने मित्र हैं, पुराने अच्छे मित्र जिसको मैं कहूँ। मिस्टर डॉक्टर सुमन सुगू ने अच्छा वो लिया कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को इन गतिविधियों में कोविड के उसमें कैसे एंगेज किया जाए। चेंजिंग सिनेरियो प्रियंका गुप्ता जी, या मैं कहूँ प्रोफेसर पी.के. नायक। प्रोफेसर, मैं लिस्ट ना लूँ, मैं इश्यूज की कहूँ। एक जो बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की बात आई है, जॉइनिंग हार्ट्स एंड माइंड, वर्क लाइफ बैलेंस, म्यूजिक थेरेपी की बात आई है, हेल्थ एजुकेशन, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, माइंडिंग द माइंड की बात आई है, पर्सनैलिटी बैलेंस की बात आई है, और तो और इसको एक अच्छा रंग देने के लिए दोहा कतार से हमारी किसी बच्ची ने, आयामी जगूरी ने, एक कविता भी पढ़ी है। मैं मूल बात पे आऊं कि जो ऊपर से सभी बातें कही गई हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, वो क्या संदेश देती हैं, या क्या निचोड़ निकलता है इस सारी बातचीत का। मैं कहूं कि हमारे मनीषियों ने, जैसा कि मैंने बताया था कि पंजाब एक बहुत ही सांस्कृतिक धरोहर वाली जगह है, यहाँ एक दर्शन आया था, योग दर्शन। भारत के 6 दर्शनों में से एक दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन के हम सभी जानते हैं अष्टांग मार्ग कहलाता है, पतंजलि का योग दर्शन है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि योग दर्शन भी 2 प्रकार के हैं। एक वशिष्ठ योग सूत्रम है, जो अयोध्या के महाराज रामचंद्र जी के कुल गुरु थे, उनके द्वारा संपादित लिखित ग्रंथ है वशिष्ठ योग सूत्रम। दूसरा जो प्रचलित है हम सभी में,
और जिसकी मैं अभी बात करूंगा वो है पातंजलि योग सूत्र। इसके जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, मुझे तो लगता है कि उनमें ही सूत्र छिपा हुआ है। कोविड-19 से लड़कर आज के युवा को अपनी सेहत को, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए। यहां लगे हाथ मैं इतना भी कहूंगा कि पंजाब की जमीन ने बहुत संघर्ष किया है। पंजाब की जमीन ने बहुत, कहना चाहिए कि बहुत सा पानी तब से गुजर रहा है जब से पंजाब इन सब चीजों से लड़ रहा है। विशेष रूप से मैं 1984 के बाद जो पंजाब की स्थिति, 84 से पहले जो पंजाब की स्थिति थी, पंजाब में जो एक आतंक और बाहरी तत्वों द्वारा जो गड़बड़ की जा रही थी, उसको पंजाब ने सहा है। साथ ही पंजाब ने अब पिछले दिनों में, जब इससे पहले भी पंजाब में गया था, तो एक बड़ी लहर सी आई थी, गंदी लहर, ये ड्रग एडिक्शन की। इसने भी जो हमारे पंजाब के यूथ की मानसिकता को एक बिगाड़ना चाहा था। लेकिन जैसा कि मेरा स्पष्ट मानना है, ये मेरी एक धारणा है, ये मेरा एक सोच है, मेरी मानसिकता में गहरा हो गया है, मुझे लगता है भारत में, दुनिया में कहीं भी किसी को कुछ हो सकता है, शायद पंजाब के आदमी को बहुत कुछ नहीं हो, कुछ बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कारण यह है कि पंजाब का जो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि पंजाब का एक व्यक्ति, मतलब मैं अक्सर अपने दोस्तों से बात किया करता हूं कि भारत में यदि कहीं सबसे ज्यादा इनर एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, तो वो पंजाब के लोगों में है। पंजाब का संगीत है, पंजाब का खाना पीना है, पंजाब की खेती है, पंजाब की, हमारे भारत के बारे में कहा जाता है कि व्हाट इज इंडियन कल्चर, इट इज एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में आज से नहीं, मैं बचपन से 1960 के आसपास से सुनता आ रहा हूं, भारत में केवल एक ही जगह है और वह है पंजाब, जिसने कृषि के मामले में सारे देश को नए मापदंड दिए। तो पंजाब की इस भूमि में जो खसूसियत है, जो खास बात है, उसमें यदि मैं पहले, योग के 2 हिस्से माने जाते हैं, एक बाह्यांग और एक अंतरंग। तो बाह्यांग में प्राणायाम तक बाह्यांग माना जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम में भी फिर कहा जाता है जो संयम होता है, यम में भी हम लोग वो मानते हैं कि शौच, संतोष, स्वाध्याय, निध्यासन, ईश्वर प्राणायाम, साफ सफाई रखना, जो हमारा कोविड का फिर उत्तर है। यदि हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, शौच, संतोष, तप, शौच करना, शौच यानी सफाई, सफाई किसकी, शरीर की, मन की, आत्मा की सफाई। मुझे लगता है इससे बड़ा सीक्रेट नहीं हो सकता कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो जो शौच है, शौच में भी अनेक प्रकार माने गए हैं, नौली, धोती, वस्ती, त्राटक, और वो जल नेति वगैरह, जल नेति, सूत्र नेति, रबर नेति, और पता नहीं क्या, इतना यदि आप पढ़ेंगे तो इतना सब कुछ हमें मिलेगा। शौच पहला जो नियम है, पहला जो अंग है योगासन का, शौच, इसके भी 5 अंग है, यम में भी शौच, संतोष जो है उसमें संतोष करना। खैर मैं भी इन पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगा, मैं केवल बात कहूंगा। तप की बात कही जाती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, इनको तप, इनमें कहा जाता है कि इनको जो सहने की आदत डाल दे। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है भारत में, उत्तर भारत में विशेष रूप से गर्मी का प्रकोप भी रहता ही है। ऐसे में इन स्थितियों में हम अपने आप को ढाल लें, क्योंकि मैं आज भी ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो 40, 45, 46 डिग्री में भी पंखा ऑन नहीं करते। मैं औरों की बात ना कहूं, मैं अपने यूथ में भी, आज से नहीं, 1975 के आसपास, 25, 20, 45 वर्ष हो गए हैं, 25 साल पहले मैं स्वयं 45 डिग्री टेम्परेचर में घर के सबसे ऊपर के उसमें हाथ के पंखे से ही घंटों नहीं, दिनों, महीनों रहता था और समय बिताता था। तो जो ये हमें तप है, और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि पंजाब के जीन्स में है, पंजाब की व्यक्तित्व में, हर व्यक्ति के उसमें है, नसों में छाया हुआ है, तप की आदत डालना। यदि हम तप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कोविड-19 हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसमें फिर
स्वाध्याय कुछ ना कुछ पढ़ें और ईश्वर में विश्वास रखें। फिर बात आती है नियम की। मैं मुश्किल से 2-1 की बात करूंगा। नियम में फिर हमें बात करते हैं हम लोग नियम में सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मैं जल्दी से बता दूं, सत्य और अहिंसा हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ भी सकते हैं। आस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह इकट्ठा ना करना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ हम केवल यौन तृप्ति से ले लेते हैं, नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी 11 इंद्रियों को, 11 इंद्रिय भारतीय दर्शन में मानी गई हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हम और आप सभी जानते हैं, 5 सेंसेस, और 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय में आता है हस्त, पाद, पायु, वाक, उपस्थ, हाथ पैर, आवाज बोलना, और मलेंद्रिय और जनेंद्रिय, और 11वां आता है मन। इन 11 को यदि हमने नियंत्रण कर लिया, इन 11 को यदि हमने इसमें बांध लिया, तो हम योग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह से आपने बहुत सुंदर, आप लोगों ने अच्छे जो टॉपिक लिए हैं, साइकेट्री है, मेंटल हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टूडेंट है, छात्र अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि यदि आज का छात्र, आज का यूथ अपनी सांस्कृतिक धरोहर को ही पहचान ले, क्योंकि अनेकों रिजल्ट, अब नए नए रिजल्ट आ रहे हैं, भारत में भी आ रहा है कि ऐसे अनेक यूथ हैं जिन्होंने कोविड या जिनको का आक्रमण हुआ और उन्होंने आसन और प्राणायाम से ही अपनी इस बीमारी को दूर भगा दिया। इतना ही नहीं, आप कल्पना कीजिए, कल की ही खबर है कि 100 वर्ष की महिला ने, जिसके बेटे की कोविड से 19 से डेथ हो गई थी, उसने उसने ही कहा मैंने संयम बरता, उसने अपने संयम से कोविड 19 की, अपना जो बीमारी आई थी उसको भगा दिया। तो संभव है, बहुत संभव है, बशर्ते हम निर्णय ले, हम एक पक्का निर्णय लें कि हमें अपने व्यक्तित्व को इधर ढालना है। इसमें स्वाभाविक है और बहुत सी चीजें भी चाहिए, केवल एक ही चीज नहीं है। मैं 10 चीजें मैं कहा करता हूँ, जनरली सामान्यतः क्या करता हूँ। जैसे सबसे पहले हम ईश्वर में विश्वास रखें कि हम कर सकते हैं, that we can do it, that I can। ये जो एक आत्मविश्वास है वो सबसे बड़ी शक्ति है। वो हमें सबसे पहले ये बताएगा कि हम, वो मैं कहूंगा सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला चरण है, वो बताएगा कि हम दौड़ सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास के बाद जैसा कि उसमें शौच में भी बताया, साफ सफाई में बताया, आज अपने ये डॉक्टर भी बता रहे हैं, यदि आप पानी, अच्छा पानी, स्वच्छ पानी का उपयोग करेंगे ज्यादा से ज्यादा, अपना ईश्वर में विश्वास रखेंगे, पहले आत्मविश्वास, दूसरा ईश्वर में विश्वास, और तीसरा आचरण करें। आचरण में क्या आएगा? आचरण में पानी पीना भी आएगा, आसपास की साफ सफाई रखना भी आएगा, माता पिता का प्रेम से सबको प्रेम भी कर भी आएगा। यहाँ अनेक स्टडीज हुई हैं। यदि हम, जैन दर्शन में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, जैन दर्शन में कहा गया है कि जो किसी के प्रति बुरा सोचना भी हिंसा है, भाव हिंसा की बात कही गई है। हम चारों ओर प्रेम बांटें, आनंद बांटें, खुशी बांटें, और इसके लिए फिर अनेक फार्मूला, बहुत से फार्मूले लोगों ने दिए हैं कि आप अपने मन का काम करो, दिन में आप किसी एक बार, कम से कम एक बार किसी और की मदद करो। हम अपने पास जो कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दे सकता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से। वह किसी को यदि कुछ दिन में देगा तो जो से उसे संतुष्टि और आनंद मिलेगा, वह एक बड़ा सूत्र बनेगा इन सभी स्ट्रेटेजीज में, इन सभी स्वाभाविक है। इसमें अगली बात आसन और प्राणायाम की कही गई है। सच बात तो यह है, आज से नहीं, मैं कम से कम 50 साल से देख रहा हूं, सारे भारत में नहीं, सारे विश्व में सैकड़ों, करोड़ों, लाखों, करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, केवल और केवल आसन, तीसरा जो योग का अंग है, आसनों के द्वारा ही। बॉडी पोस्चर्स, बॉडी एक्सरसाइजेस, यदि हम अपने शरीर की कसरत करें, हम अपने शरीर में व्यायाम करें, तो यही अपने आप में, इसमें फिर स्टडीज हुई हैं, एक नहीं,
50 स्टडीज हुई हैं कि हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे हमें लड़ने की शक्ति आती है और हम बेहतर कर पाते हैं। तो अपने आप में जब आप ये लगाइए, मैं अक्सर ऐसा ही सोचा करता हूँ, क्योंकि मैंने करीब 40 साल योग दर्शन पढ़ाया है, कि यदि केवल एक आयाम जिसको कि हम प्राणायाम कहें, उससे ही इतनी सारे फायदे हैं सारी दुनिया में, तो यदि हम 8 का उपयोग करेंगे तो कितने फायदे होंगे। मैं यहाँ अपने योग के अनुभवों की बात नहीं करना चाहता, पर वो एक लंबी कहानी है। कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ईश्वर अनंत है, उसकी कहानी भी अनंत है। तो ऐसे में जो अनुभव मेरे रहे हैं, अनुभव मतलब कल्पनातीत अनुभव है, अति इंद्रिय अनुभव भी मैं कहूंगा, अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मुझे आज से 20 साल पहले से अति इंद्रिय अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। मैंने पढ़ा है और ऐसे लोगों को पढ़ा है जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। डॉक्टर रांगे राघव भारत के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तकों में बड़ा, वो एक मार्क्सिस्ट थे, जो मार्क्सिस्ट वो कहलाते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने अपनी किताब में बड़ा स्पष्ट कहा है कि मैंने अपनी आंखों से लोगों को जमीन से 6 इंच ऊपर चलते देखा है, मैंने अपनी आंखों से लोगों को पानी के ऊपर चलते देखा है। आज भी सिक्किम, गंगटोक और तिब्बत और हिमालय की ऊंचाइयों में सैकड़ों साधु ऐसे हैं जिन पर ऐसी क्षमताएं हैं। तो हम चाहें तो हम सभी इन क्षमताओं को हासिल करना सकते हैं, बशर्ते हम करना चाहें, आत्मनिर्णय लें, आत्मविश्वास रखें, ईश्वर में विश्वास रखें और सबके बाद एक अच्छा आचरण करें। इसी के साथ एक और अब जो नया फैशन सा ही जुड़ गया है, किंतु अच्छी बात है, ऐसा फैशन भी बड़ा, यदि सब लोगों को आए इस फैशन की दौड़ में भी तो अच्छी बात होगी। दूसरा, प्राणायाम। मैं कहूंगा कि आसन के साथ प्राणायाम भी यदि हम मिला लें तो सोने में सुहागा है। और सारी दुनिया में आज लाखों करोड़ों लोग ऐसा कर रहे हैं। आसन और प्राणायाम के एक योग से सारी दुनिया अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर रही है। ऐसे में मैं फिर कहूं, अगले 4 जो प्रत्याहार रहते हैं, प्रति आहार, मैं एक लाइन में मतलब लूं कि हम अपना इंद्रियों का आहार बाहर के विश्व से ना लेकर अपने आत्मा के अंदर लें, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं अपने अंदर हूं, मैं आपके अंदर हूं, मैं खुद ही ब्रह्मा हूं, ब्रह्म मेरे अंदर है। तो बाहर ना झांक कर यदि हम अंदर झांकें, भौतिक शरीर के अंदर हम आत्मिक और मानसिक रूप पर जाएं, अपनी मानसिक क्षमताओं को पहचानें, धारण करें, किसी अच्छी चीज को धारण करें, ध्यान करें और समाधि की स्टेज पर आ जाएं, समाधि की स्थिति में आ जाएं, तो मुझे कोई कारण नहीं लगता कि कोविड-19 से लड़ा नहीं जा सकता। मैं वापस कहूं, बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी ने अपने पेपर्स पढ़े हैं, वो निश्चय ही एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है। बहुत सुंदर आयोजन हुआ है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरी पूरी तैयारी इस विषय में शुरुआत में नहीं थी, मुझे कनेक्शन लेने में आप 10-1 मिनट लगे। मैं आपको पुनः बार बार धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं इतने सुंदर टॉपिक को लेने के लिए, बातचीत करने के लिए, इसके लिए एक मौका देने के लिए, क्योंकि हम इस सारे प्रक्रिया में शामिल 100 लोग होंगे, लेकिन जो हजारों लोग देख रहे होंगे, मैं मान के चलूं कि हम सबको इससे फायदा हो और ये हमारे विकास में मददगार बने। धन्यवाद।